एक बार एक कौन को लाया है आरो को गेरो क्या है बोला है। तो वहाँ से फिर रात था तो ओसी को पथराव वहाँ से शुरू किया, तो उसी में ओसी को भी मजबूर एक्शन लेना पड़ा। तो उसने भी एआर में जो है 2 गोली फायर किया। तो यहाँ पे आदमी लोग सुना है कि थोड़ा उधर हम कैंपिंग में रहा है तो बोला है कि झगड़ा हो रहा है। फिर वापस आया तो देखा है तो हमको मेरा गाड़ी कोई घुसने नहीं दिया। इतना मुफ्त यहाँ पे गेतर हो गया, इतना लंबा वाला ये दाव लेके पूरा गजनी फिल्म में जो होता है, और उसका बाद लाठी लेके यहाँ में 5 इंच वाला किली टूट के ऐसे मारेगा बोलते हम लोग। यहाँ पे पूरा गजनी में ऐसे नहीं ले जाते, ऐसे टाइप का स्टाइल में गजनी फिल्म में देखा था। वो शाम को ऐसे इतना खराब बोल, हम यहाँ में बोलने के लिए भी कुछ शर्म लगता है। इसलिए तो ऐसे बोलते हैं क्या सर को। सबसे पहले आप सभी को आधुनिक स्टूडियो में स्वागत है। तो ऐसे सुनने को आया है कि ये 19 सितंबर को आप सभी को यहाँ का DVC से काम कर कुछ स्टूडेंट लोग आप लोग को कुछ इंसिडेंट मारने के लिए कुछ ऐसे किया है, ऐसे सुनने को आ रहे हैं। तो ये कहाँ तक सच है, आप सब अच्छा से बता दीजिए। ओके देन गुड मॉर्निंग, स्पेशली thanks to media, I mean Allo News. So I just as a staff council secretary, I'm Mr. Gumbin Nosi. So and here in my right side we have our vice principal Dr. Gomo Karbat, and then this is in my left Gominata, the chairman grievances and redress cell, in fact the assistant professor in Department of Economics, and then Dogan Gomdir, assistant professor in Department of Hindi. And we have here gathered here all are assistant professors serving here. So first of all, just I want to highlight the overall election process that has been successfully concluded in this and 19th of this month. So by obeying all the process and procedures of the Lendo Commission, we have conducted the election process in a very transparent, fair means. So we have in a 19 we have started voting process. So by 7:30 a.m. I was the presiding officers of Donipolo Government College Kamke Student Union Election 2022-23 presiding officers. So there I have conducted the mock poll in 7:30 a.m. and then with the presence of polling agents, and then observers was there, and then all the polling officers were there, even the police personnel were there, and magistrate deployed in the election process were also there. So after completion of mock poll in 7:30 a.m., then we have start start the voting process by 8 a.m. So all the openings of the ballot boxes were made in presence of polling agents as well as all the others polling officers, and then in fact police personnel and magistrates. Then polling was
exactly start by 8 a.m. and then we have started that in the first round we have got like 18% turn up. We have actually total of 960 voters or students here enrolled as per the electoral roll or student electoral roll here. So then out of 960 first round we have 18% turn up. Then hourly I am highlighting hourly report of the voting. Then second round, first round was 8 to 9, then 8 to 9 a.m. Then second round 9 to 10 a.m. Then in the second round we have 31.77% turn up. Then in the third, that was the 9 to 10 a.m. Then 10 to 11 a.m. third round we have like turn up of like 77% like that. Then fourth, fifth, sixth. In the fourth and fifth round, almost 95% of the students have cast their votes. So total last round, fifth or sixth round, very minimum students were actually turn up like 0.7%, then 1.77% in the last round. Then after what called the completions, actually we have completed by 1 p.m. in the 19th of September 2022. Then we have, as per the notification, we have wait for 2 p.m. So there were no turn up, and we have concluded, and the sealing of ballot box was done again after completions of voting process. As per the notification of RO, we have sealed the ballot box in presence of polling agents, polling officers, even police personnel were there, magistrates were also there. So we have sealed the ballot boxes, 3 ballot boxes. Then sealing was done in presence of students, and student signatures were also taken. The polling agents, all the polling agents' signatures were taken. Then, as per the notifications of RO, we supposed to actually conduct the counting process by 20. But some of the students have requested that like conventional means in the previous year also, they have we have counted the voting in the same day. So all the candidates, they were accept and they were given their consent to count the vote for counting in the same day, that is 19 September 2022. So they have given their consent, they have put their signatures, and all the candidates have given their consent. So they have agreed. So if they will agree, because you know that in graduation level, government, RGU have already implemented choice-based credit system. So we are shortage of time in the semester system. So that's why taking into account that also, and then student request, we have actually allowed their request, and then we have agreed to count the voting in the same day. So again, actually that we have actually appeal student, especially like the polling agent, that we can have a counting in the auditorium also. But they say that in the last year we have count in the administrative block. Like we have in a two room, one in the teaching faculty room and another is in the clerk or staff room. So they have said that we have done like this in the last year successfully. So why not we count our votes in the administrative block? So in that 19 there was scorching hot, very hot weather. So students like that, we have some ACs there. Then we can have counting there. Then there will be no problem. Then after getting the consent from student, all the student candidates to count the voting process in the same day, we have accepted, and then we have shift the counting
yeah, no, counting place from auditorium to here at administrative block on the request of student especially. Then the 3 ballot boxes after sealing, we have to what called taken, we have to transfer the, I mean like ballot box को उधर से हम लोग यहाँ में लाना है 3 ballot boxes को, तो उसमें in the presence of police personnel, magistrate और उसका बाद स्टूडेंट लोग भी था, और उसका बाद यहाँ में हम लोग कॉलेज बस से यहाँ में लेके आया है। जब यहाँ में लेके आए तो यहाँ में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में लेके आए, स्टूडेंट लोग पुलिस पर्सनल सब था, हम लोग ट्रांसपेरेंसी हुआ है। और उसका बाद ये जो है हम लोग का टीचिंग फैकल्टी स्टाफ रूम में हम लोग जो है उसको जितना ब्लैक बॉक्सेस है रखा है, और जितना है उन लोग का एजेंट भी उसमें था, मौजूद था, जितना स्टूडेंट का एजेंट था, कैंडिडेट का एजेंट था, मौजूद था। तो उसका बाद एग्जैक्टली बाय 3:30 लाइक दैट वी हैव स्टार्टेड आवर काउंटिंग प्रोसेस। तो उसमें काउंटिंग ऑफिसर्स आपका यहाँ में है, अभी वो भी बाद में बताएगा होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ काउंटिंग ऑफिसर हम लोग का जो है वाइस प्रिंसिपल था डॉक्टर गोमो कारबाग। तो वो ऐसे करके हम लोग जो है पर्स ऐसे उसमें पूरा सीलिंग को स्टूडेंट का साथ में, एजेंट का साथ में सीलिंग को फिर अनलॉक करने के लिए सीलिंग को निकला है, उन लोग का साथ में सर्टिफिकेट दिया है, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट हुए ऐसे किया है। और उसका बाद यहाँ में जितना था यहाँ में ही काउंटिंग, वो जो टीचिंग फैकल्टी है जो अभी हम लोग फिलहाल बेच रहा है, ये जो इस तरफ जो है आपका ये जो है क्लर्कल स्टाफ कॉमन रूम है, ये ग्राउंड फ्लोर जो है। तो उसमें जो है हम लोग ब्लैक बॉक्स पार्ट्स रखा था, और यहाँ में ना एक ब्लैक बॉक्स, 3 ब्लैक बॉक्स में एक उधर ब्लैक बॉक्स और एक ब्लैक बॉक्स यहाँ में हम डिवीज़न किया है। उसका बाद डिवीज़न करके आप जो है 2 ब्लैक बॉक्स उधर बच गया, और यहाँ में एक ब्लैक बॉक्स, यहाँ में भी जितना आपका जो है फैकल्टी, काउंटिंग ऑफिसर्स एंड देन काउंटिंग एजेंट लोग सब मौजूद था। और एग्जैक्टली यहाँ से हम लोग जो लेके जाते हैं, यहाँ में पुलिस पर्सनल था, उधर भी पुलिस पर्सनल था, स्टूडेंट लोग, एजेंट लोग भी था। तो ट्रांसपेरेंट से बाय 3:30 से हम लोग काउंटिंग प्रोसेस को शुरू करके 3:30 PM से शुरू करके 19 सितंबर में आपका ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हम लोग का काउंटिंग एजेंट लोग था। तो निकल के आपका जो है 50-50 एक बांस बना के आप जो है इसमें स्टूडेंट लोग को सबको हम लोग सप्लाई किया है, काउंटिंग शीट जो है जितना है। तो निकलते समय भी सब लोग देखा है, हाँ। तो ऐसे करके हम लोग जो है काउंटिंग प्रोसेस को अच्छा से ये किया है। और उसका बाद बिफोर काउंटिंग प्रोसेस में उन लोग को बताया कि आपका जो है कैसे होने से इनवैलिड होगा, कैसे होने से वैलिड सिस्टम होगा, उन लोग को भी अच्छा से बताया। तो उन लोग एग्री किया, प्रोसेस को स्टार्ट किया। एवरी 50 काउंट होने का बाद और काउंटिंग होने का बाद अच्छा से यहाँ में बहुत देर से काउंट किया है। यहाँ में ऐसे देखा के यहाँ में आप लोग कंप्लेन होने से भी कुछ प्रॉब्लम क्वारीज होने से भी बताओ, यहाँ में GS एक तो ये होगा, बोगो होगा, नहीं तो एक तो कार्पी का होगा। ऐसे करके हम लोग जो है अच्छा से सबको अच्छा से देखा के काउंटिंग किया है। एवरी आपका जो है एंड ऑफ द काउंटिंग 50 का काउंटिंग करने के बाद जो है आप जितना हम लोग का ये जो है काउंटिंग एजेंट स्पेशली स्टूडेंट लोग का आप लोग सेटिस्फाई है किया, कुछ प्रॉब्लम होने से बताओ बोल के वो एग्री तो करती के बोल के टैली करके हम लोग अच्छा से लेते हैं। और एवरी खत्म होने के बाद 100 खत्म होने के बाद हम लोग का जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल जो है अनाउंस अच्छा से किया है। तो ऐसे करके जो है हम लोग 8 राउंड कंप्लीट हुआ है। 8 राउंड में कंप्लीट करके आपका जो है एक ब्लॉक भी, एक काउंटिंग रूम भी 8 राउंड कंप्लीट है। 8 राउंड 50-50 होने से एक राउंड में 4 आपका 400 हो जाता है, एक राउंड में 800 हो जाता है। और लास्ट या में राउंड में जो है थोड़ा बच गया था, उसमें जो है या में 36 स्ट्रोक में हम लोग काउंटिंग नंबर 2 में ये किया है। जो जितना रेस्ट है उधर काउंटिंग नंबर 1 में हुआ है। तो वो ट्रांसपेरेंट हुए से हुआ है, 912 को अच्छा से गिना है। तो उसका बाद खत्म होने के बाद डिक्लेरेशन भी हमें अनाउंस कर दिया है आरओ, और स्टूडेंट लोग काउंटिंग नंबर 1 और काउंटिंग रूम नंबर 2 में जितना है उन लोग सेटिस्फाई हो गया। हम लोग इतना कुछ प्रॉब्लम है क्या बोल के वो लोग काउंटिंग एजेंट लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा से क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट से हुआ है, हम लोग का कुछ कंप्लेन नहीं है, सेटिस्फाई है बोल के उन लोग सिग्नेचर भी दिया है लास्ट में। तो ऐसे हो गए काउंटिंग प्रोसेस डिक्लेरेशन, मतलब वो शाम को ही टिक तक हुआ है। तो उसका बाद हम तो यहाँ में हम लोग का तो यहाँ में खत्म होने का बाद डिक्लेयर होने के बाद हम भी यहाँ से हम निकालने के लिए किया है। तो उसमें प्रीत आदमी भी नहीं था, उसका बाद उधर गया है
तो यहाँ में आदमी लोग सुना है कि थोड़ा उधर हम कैंटीन में रहा है तो बोला है कि झगड़ा हो रहा है। फिर वापस आया तो देखा है तो हमको मेरा गाड़ी कोई घुसने नहीं दिया। इतना मुंह यहाँ पे गेतर हो गया। प्रोसेस तो एवरीथिंग प्रोसेस क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एकदम अच्छे से किया है। और उसका बाद वो जो है लास्ट मोमेंट में कैंटीन एजेंट लोग सब सर्टिफिकेट दे के ये होके पूरा डिक्लेरेशन रिजल्ट होके सब अच्छे से निकल गया जल्दी से। बाद में आफ्टर लाइक सिस्टम और रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद 30 मिनट का बाद कुछ मोब या में मतलब आके स्पेशली आर का जो है जब रिटर्निंग ऑफिसर का जो है आपका जो है फ्रॉम बूटिंग में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा और आपका काउंटिंग ऑफिसर लोग होगा। उसको वो जो है आपका जो है तय होकर उसका जब रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाने से उसका जो है फंक्शन एज आर ओ कम्प्लीट उसमें सीज हो जाता है, एंड हो जाता है। तो स्टूडेंट लोग बोला ऐसे सुनने में लगा है कि जो है उधर जो आके हम लोग को जो है ये जो है ब्लैक बॉक्स को थोड़ा देखने देना है। आर को शायद ऐसे उन लोग बोल के ये किया है। तो आर मेरा अभी कैपेसिटी नहीं है, एज आर हम डिक्लेरेशन कर दिया। तो उसके बाद डिक्लेरेशन होने के बाद आप इफ़ यू हैव एनी कॉम्प्लेन, आप तो डिक्लेरेशन का बाद तो आप कुछ प्रॉब्लम नहीं था। आप अगर ऐसे कॉम्प्लेन हो रहा है तो देयर इज सर्टेन आपका जो है प्रोसीड्यूर है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल है पुलिस का इलेक्शन रिलेटेड इशू को देखने के लिए। आप उसमें अच्छा से एक रिटर्न कॉम्प्लेन दे के आप अच्छे से करो। अदरवाइज आर उसको देखने से भी आर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो जो है सिस्टम में नहीं होता है इलेक्शन प्रोसेस का। तो ऐसे करके जो है वो जो है आर का साथ में क्या किया, मतलब यहाँ में हम लोग का फैकल्टी लोग भी यहाँ में आ गया था। फैकल्टी लोग का साथ में इतना मतलब उधर से सलान वर्ड यूज़ किया है, ऐसे खराब अभी यहाँ में मतलब एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत एज ए टीचर मतलब बहुत ये मतलब ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, शर्म लगता है। ऐसे एब्यूसिव अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ किया है, ऐसे ट्रीटमेंट किया हम लोग को। तो उधर से इतना स्लोगन कर रहा है, लड़की लोग इतना चिल्ला के बोल रहा है, पूरा दाव लेके आ रहा है उधर में। 19 सितंबर ये जो है खत्म होने का बाद, सक्सेसफुल कंडक्ट होने का बाद पूरा स्पीकर यूज़ कर रहा है। और आपका जो है ये जो टीचर लोग को लिमोसर को निकलो नहीं तो नहीं सरेगा, कॉलेज को आग लगा देगा, गाड़ी शान लोग का जितना गाड़ी को जला देगा। आप लोग का यामी नहीं होने से भी, लिमो को नहीं देने से, अगर आप लोग ऐसे होने से भी हम लोग जस्टिस चाहिए। क्या का जस्टिस हम लोग बोलते हैं, इसी लाइक हम लोग इनजस्टिस क्या हो गया। हम लोग तो स्टूडेंट को सबको एक ही ट्रीट करते हैं। तो ऐसे होकर जो है हम यहाँ में जब ऐसे होने का बाद वो जो है मैदान यहाँ में तो हम लोग का बाहर से भी आने वाला मैदान लोग है, फैमिली को अटैक करेगा, लाइव ट्रेनिंग दे रहा है, क्वार्टर को जला देगा रात को 12 बजे। इतना लंबा वाला ये दाव लेके पूरा गजनी फिल्म में जो होता है, और उसका बाद लाठी लेके यहाँ में 5 इंची वाला किली तोड़ के ऐसे मारेगा बोल के हम लोग यहाँ में पूरा गजनी में ऐसे नहीं ले जाता है। ऐसे टाइप का स्टाइल में गजनी फिल्म में देखा था हम लोग, ऐसे कभी नहीं देखे। तो ये क्या स्टूडेंट है ना टेररिस्ट है। तो आपका जो है हम लोग का ये जो है कैंपस का जो है एनवायरनमेंट कम्प्लीटली अभी जो है टेरिफाइंग ये में सिचुएशन में है। इतना मतलब यहाँ में हम लोग को डरा कर रखा है स्टूडेंट लोग। तो आपका जो है उसका बाद वो शाम को ऐसे इतना खराब वर्ड हम यहाँ में बोलने के लिए भी कुछ शर्म लगता है। स्टूडेंट ऐसे बोलता है क्या सर को, हम लोग स्टूडेंट ऐसे होने से कैसे उन लोग को इंटरेक्ट करेगा। हम लोग ये स्टूडेंट का भलाई के लिए सोचते हैं, स्टूडेंट का अपलिमेंट के लिए सोचते हैं, स्टूडेंट का अच्छा रिलेशन मेंटेन के लिए हम लोग सोचते हैं। एलवेज हम लोग सब स्पोकन होता है उन लोग का सामने में, एलवेज हम लोग जो है सब होता है उन लोग का सामने में। तो ऐसे होने का बावजूद इतना मात्रा में उन लोग करने के लिए करेगा। टीचर हम लोग को टीचर जैसे उन लोग ट्रीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे होके मतलब वो शाम को 19 सितंबर जो है इलेक्शन रिजल्ट सक्सेसफुल अच्छे से डिक्लेयर होने का बाद स्टूडेंट इनफैक्ट लूजिंग टीम का ये है, हम लोग जो है जो लूजिंग टीम का ये है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी बहुत है हम लोग का अभी जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ऐसे होने के बाद आपका ये जो है आपका ओसी लोग भी था, पुलिस पर्सनल था, और मजिस्ट्रेट जो डिप्यूट किया था इलेक्शन सिस्टम के लिए वो भी आई विटनेस है। जितना है आप लोग का वीडियोग्राफी जो हम लोग का पास में आई विटनेस है। तो ऐसे होकर 19 में सिस्टम यहाँ में ऐसे होके लिमोसर को तो निकलने नहीं दिए। 1 बजे तक होके आलो से
एडिशनल पुलिस फोर्स बुला के वो जो है उसका बाद 1 बजे ऐसे में या उसको बुलेट प्रूफ बना के उन लोग का जो है पुलिस का जो है आर्मी जो है मिलिट्री का जो है उन लोग का पुलिस का कपड़ा पहना के उसको 2 बार उसको एक्सपोर्ट करके आलो ले गया, वो भी बुलेट प्रूफ पहना के। स्टूडेंट लोग तो मारेगा पीटेगा, अगर ऐसे नहीं होने से लोगों को तो मार देना था। वो आरो का ड्यूटी भी उसको एज ए स्टूडेंट जानना है ना, ग्रेजुएशन लेवल में है आप, वो जानना पड़ेगा क्या क्या है। लेंदो कमीशन अच्छे से जानना पड़ेगा, लेंदो कमीशन में क्या क्या लिखा है, आरो का क्या फंक्शन है जानना पड़ेगा। जितना फंक्शनरी इलेक्शन में इन्वॉल्व है उसका क्या फंक्शन है उसको जानना पड़ेगा उन लोग, उसका बेसिस में वो कुआ नहीं होने से होना है। तो वो रात को तो पूरा यहाँ में मैडम लोग था, उसमें इतना ट्रीटमेंट किया है, लाइफ ट्रीटमेंट दिया है, इतना सोल्डरिंग किया है, इतना खराब वर्ड यूज़ किया, लैंग्वेज यूज़ किया है। मारेगा पीटेगा, सिर्फ मारेगा पीटेगा भी नहीं है, मराएगा। ये तो नहीं होता है क्या मराएगा बोलना, अपना सर को मराएगा क्या? ये क्या स्टूडेंट ही ना टेररिस्ट ग्रुप है, अपना सर को मराएगा बोल के। सरो सर को भी मरा उसको सरो, फैमिली को मराएगा, फैमिली मेंबर होता है वो आपका, घर जला देगा क्वार्टर को। ये ऐसे थोड़ी होता है क्या स्टूडेंट का? तो ऐसे होके मतलब हम लोग जो है ये हो गया 19 शाम को ऐसे जैसे तैसे मतलब ये हो गया वो निकालने के बाद हम लोग भी अपना अपना जगह में साल लोग भी ये किया। साल लोग इतना यहाँ में परसू करने के लिए भी हम लोग एज स्टूडेंट अपना स्टूडेंट को परसू करने के लिए साल लोग को भी इतना गलत मतलब खराब से ऐसे बोला है, पर भी हम लोग जैसे तैसे ये करके मूव को सिस्टम से ऐसे होके हम लोग जो है कोई बाहर से डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन लोग भी आए किया, शायद उन लोग भी काम डाउन करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया, अप्रिशिएट करते हैं उसको भी हम। तो ऐसे होके 19 शाम का इतना मतलब अनफॉर्चुनेट ना इंसिडेंट्स का बाद हम लोग 20 में यहाँ में आके, तो 20 में तो हम लोग सोच रहे थे स्टूडेंट लोग आने से यहाँ में रहेगा होगा। तो 19 को तो शाम को हम लोग का इतना शाम हो गया था थोड़ा, तो उसमें इतना मार्क्स उस लेके पेशेंट के लिए प्रॉब्लम है। ऐसे होके हम लोग मार्क्स जितना है पूरा पेज को दाग के जितना यहाँ में था, बाहर का है ना हम लोग का स्टूडेंट है ऐसे टाइप का इतना 100 ऐसे था यहाँ में असेंबल होके। तो 19 का वो जो है ऐसे सिचुएशन ख़त्म होने के बाद हम लोग डिस्पर्स 12-1 बजे डिस्पर्स होने के बाद लिमोसार को ले गया, और उसका बाद ये जो है 20 को हम लोग जो है स्टाफ काउंसिल एज ए स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी हम एक, क्योंकि कॉलेज एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो गया था, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए आपको जो है एक अच्छा एक एनवायरनमेंट चाहिए। हम लोग को भी एक ऐसे होता है कि अभी हम लोग टीचिंग में आने स्टूडेंट का साथ में हम लोग को जो है पुलिस लोग एक्सकोर्ट करके क्लास में अगर देना पड़ेगा तो जाके हम लोग पढ़ा सकेगा, अदरवाइज हम क्लास में भी करा करने से उन लोग आके सबको मारेगा जिससे लग रहा है वो इंसिडेंट से देखने से। तो अभी इंस्टीट्यूशन से हम लोग का सेफ्टी के लिए काम करना पड़ेगा। क्लास जब लेते हैं भी अगर होता भी है तो आप हम लोग को प्रॉपर सिक्योरिटी का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो कौन यहाँ में पढ़ाएगा कि अपना लाइफ को रिस्क में डाल के। तो हम लोग 20 में नेक्स्ट दिन में हम लोग स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी एज ए स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी विद द इनिशिएशन ऑफ स्टूडेंट यूनियन एडवाइज़र हम लोग सब स्टाफ जो है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को हम लोग जो है ये किया है, बता के हम लोग डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन भी हम लोग इतना जल्दी नहीं लेना था, क्योंकि हम लोग सोच रहा था वी हैव सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, क्योंकि 19 में हम लोग का जब आप ये इंसिडेंट होने का बाद पुलिस पर्सनल लोग भी आया है लेकिन मॉब डिस्पर्स नहीं हुआ है, ये बहुत प्रॉब्लम था। और 19 को और रात को थी कि ऐसे होने से भी नेक्स्ट दिन 20 को हम लोग कोई अरेस्ट करेगा बोल के, क्योंकि मजिस्ट्रेट लोग भी था पुलिस लोग भी था, उन लोग देखे अरेस्ट करेगा सोच रहा था, कोई किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। पत्थर भी मारा इसको कॉलेज बिल्डिंग को, गाड़ी तो होने से पूरा तोड़ देना था गाड़ी लोग को, लिमोसर का लकीली उधर गाड़ी रहा उसमें रखा था। तो ऐसे करके ना तो डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन से आपका क्विक एक्शन ले है, तो हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट ये करने के लिए और ये जो इन्वॉल्व है स्पेशली जो है आपका लूजर टीम लोग का जो है ग्रुप लोग की ज़्यादा मतलब उन लोग इन्वॉल्व था उसमें। तो ऐसे होके जो है
अगर उन लोग जो है आपका मार्क्स यूज़ करके हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करने से, कोई कोई अब तो वीडियो में भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो ऐसे होने से जो लूजर टीम का जो आपका जो है कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, स्पेशली जनरल सेक्रेटरी जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। वो जो है आपका जो है अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, बाहर से हम ऐसे सपोज बोलने से भी या मैं आके हम मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सालों को बता सकना था, वो हम लोग को कुछ भी नहीं है। बाहर में जाके हम लोग ऐसे लग रहा है कि वो इंस्टिगेट करके मूव को वही इंस्टिगेट करके हमें लाया है, ये किया क्या, हम लोग को धमकी देने दिया है क्या, हम लोग को ट्रीटमेंट देने दिया, ट्रीट करने दिया है क्या, तो वो तो ऑब्वियसली बनता है। तो इसलिए हम लोग जो है स्टाफ डिस्ट्रिक्ट ये आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ एक्शन नहीं ले, कुछ जो यहाँ में स्लोरिंग कर रहा था, पत्थरबाजी फेंक रहा था और दाव लेके आया था, यहाँ में पूरा लाठी उठी पूरा लेथल वेपन लेके आया था, तो उसको कुछ भी मतलब एक्शन नहीं ले, तो अब जाके ऐसे वैसे नहीं होगा। ये एक बैड प्रेसिडेंट बैठेगा, खराब वाला प्रेसिडेंट बैठेगा बाद में। तो ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ऐसे एनवायरनमेंट नहीं होना है बोल के हम लोग जो है ये जो है स्टाफ काउंसिल जो है हम लोग मीटिंग ये कंडक्ट किया है 20 को, तो उसमें हम लोग डिसीजन पास किया है। तो आप वो डिसीजन को आपका साथ भी हम लोग शेयर किया है। तो वो डिसीजन में हम लोग पास करके भी जो है वो डिसीजन हम लोग आगे नहीं बढ़ा, इम्प्लीमेंट नहीं करने के बाद, क्योंकि होप था कुछ और थोड़ा उन लोग को एक्शन लेगा क्या बोल के, तो वो नहीं आए। तो उसमें फाइनली 20 को जो है हम लोग डिसीजन नहीं लेने का आगे में आपका जो है एक लूजर टीम लोग जो है ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेसल सेल को जो है कंप्लेन दिया है, रिटर्न कंप्लेन। वो बिफोर वो जो है रिटर्न कंप्लेन में भी वो बहुत कुछ बोल रहा था, ऐसे देखना है मतलब प्रोसेस है, मतलब इसमें ना आपका थ्रो प्रॉपर चैनल से जाके थ्रो सिस्टम से जाके करना पड़ेगा, एज पर लेंडो कमीशन से, एज पर लेट डाउन नोट से आपका जो है इलेक्शन लेंडो कमीशन से। तो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल को वो कंप्लेन कुछ एनामोली है, वो इनफैक्ट अपील कर सकता है और प्रोटेस्ट भी कर सकता है, लेकिन पीसफुल मैनर में कर सकता है। अगर उन लोग का एनोमोली अगर सोचता है तो उन लोग ऐसे हुआ है वो क्या, तो ऐसे भी नहीं है आपका। आप भी देखा हमको, आप भी वोटिंग ये बैलेट बॉक्स को देखा वगैरह, तो उसमें सर्टेन प्रोसीड्यूर है दिखाने के लिए। उसमें ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल को ये करना पड़ेगा। रिटर्न कंप्लेंट नहीं है तो नेक्स्ट दिन में उन लोग रिटर्न कंप्लेंट दिया है। तो रिटर्न कंप्लेंट में शायद इसमें आपका जो है एलिगेशन उन लोग लगाया था कि जैसे कि ये आपका जो है सकली बोगो जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट दिया है और गांधीगाम का काउंटिंग एजेंट, साकपरोना पोलिंग एजेंट एंड मिस्टर जुम्मो योंगम काउंटिंग एजेंट। ये सर आदमी जो है स्टूडेंट जो है ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेसल चेयरमैन को जो है 20 को वो जो है एप्लीकेशन कंप्लेंट दिया है। उसका कंप्लेंट है कि 9 कंप्लेंट है वो भी। पार्ट जो है बैलेट बॉक्स सील बैलेट बॉक्स वाज टेम्पर, देन सेकेंड ऑन वोटिंग टाइम वोटिंग प्रोसेस वाज सेमेस्टर वाइज बट एट द टाइम ऑफ काउंटिंग द बूथ all the ballot number was missing. Then third number, GS General Secretary candidate were not allowed in the election counting room for claim and objection. Then 4, there is very high chance of tampering of ballot paper because the ballot box was sealed and unboxed in the absence of candidate. The election committee done the very unfairly method in counting process. Then next 6, the polling process was not done accordingly, as some of the voters has cast their vote without college ID card. Then 7, the right of the polling and counting agent was been curtailed as their claims and objection was not entertained. 8, shifting of the ballot boxes, ballot paper clearly indicate that the ballot papers has been tampered as the shifting was done in absence of counting agent and the person who took the ballot paper from room number 1 was not the person who brought the ballot paper in room number 2. 9, as mentioned above, the undersigned strongly demand to check the CCTV footage in the between the office dormitory. तो 9 एलिगेशन वो दिया था। तो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल वो जो है आपको
इसका ऊपर में आप लोग उन लोग क्या डिसीजन लिया है, ये वो जो है कंप्लेंट दिया हला वैलिड ताकि दे सकता है, ऐसे अपील कर सकता है प्रॉब्लम होने से, लेकिन उसको वो डिटेल को कैसे उन लोग हियरिंग में ग्रीवेंसेस रिडरशल सेल जो है उन लोग हियरिंग में कैसे उसको एक्सेप्ट किया है कि नालीफाई किया है, उसको वो आपका यहाँ में है चेयरमैन ग्रीवेंसेस एंड रिडरशल सेल का है, वो अभी अच्छा से बताएगा आपको। तो उस देन आफ्टर दैट ये जो है सिस्टम जो है टिकता हुआ है, अभी इसको वो जो है थोड़ा एलिगेशन को स्टूडेंट लोग का बताएगा, तो उसका सब्जेक्ट होगा इसमें, वो सर बताने अच्छा लगेगा। तो हम लोग का डिमांड के लिए आएगा अभी। तो सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट वे होने का बाद सो आपको हम लोग जो है स्टाफ काउंसिल मीटिंग से हम लोग अभी प्रिंसिपल को एड्रेस किया है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, क्योंकि हम लोग का जो है 19 सितंबर 2022 में आफ्टर इलेक्शन और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हम लोग का जो है जो वायलेंस या में जो वायलेंस ओकर हुआ है एंड देन थ्रेट एंड इंटिमिडेशंस टू फैकल्टी मेंबर, डिफेमेशंस of the college and faculty members and keeping the faculty's member hostile till midnight that unfolded since the evening of 19 September 2022. Okay. Then the night of terror mass-murdering student was unleashed on the campus and inflicted on the faculty members by Sokli Bogo, a student of 5th semester political science major, and his team, who after losing the post of General Secretary of Donjipolo Government College Student Union election 2022-23, refused to accept the election result and dishonored the Lendo commissions of the, in fact, Supreme Court, Honorable Supreme Court of India. The teaching and non-teaching staff of the college are shocked, traumatized, terrified, disrespected, and humiliated by this cowardly act of the student, which is in fact unprecedented in the glorious history of this college. So, in the wake of this unfortunate incident, the council feels that campus is not safe anymore. So, the conducive atmosphere of peace, the respect, trust, and obedience, which are core elements of any academia, is now replaced with an atmosphere of terror marked with violence, open personal threat to faculty members and their family, and an air of mistrust, misinformation, and hatred is prevailing now. All this could have been, in fact, avoided if the claim aggrieved party had followed the procedure recommended by the Lando commissions. So, however, causing violence and blaming the staff for losing the election and accusing them of tampering with the election process that's amount to questioning the integrity of the faculty members of the college. So we, as a result of in this, backdrop, we have, taking the clear cognizance of this, we have, staff council have union members decided to go for a pen down strike. So pen down strike from first, in fact, we have already started first September 22 until the demand of the council are met. So I will read out our demands. First, our demand is Mr. Sokli Bogo must be held accountable for the violence, hatred, and terror. Therefore, disciplinary action must be initiated against him as per the law. Second, our demand is the polling and counting agents of Mr. Sokli Bogo must be held responsible for spreading misinformations and mistrust and subjugating the pure and transparent democratic process. Then for third point, we have Mr. Sokli Bogo and his polling and counting agent must track down and reveal all the persons involved in sloganeering, threatening, carouse, terrorizing the campus armed with lethal weapons such as dowels, iron rods, and stone.
Then last point, our last demand is Mr. Sogli Bogo, his pooling agent and counting agent and other person involved in this, 1, 2, 3 FERA must be held accountable for spreading hatred, violence and threat on the campus. So this our demand must be met up. Till our demand is not met up, then we will go for pen down strike. So this is our demand. So some students have given some allegations and they have actually submitted, and matter has already been, we have solved that matter. But for your information, our the chairman grievances and redressal cell will highlight on that regards. As our staff council secretary, Nosir sir has clarified all the election process that have done in the Student Union election 2022-23. So after I will discuss in brief, I will explain in brief. After declaration of the result, the student was there. That night was such a unfortunate incident. So there, after closing the gate, few students were present inside the gate who were representing their grievances. These 4 persons were also there. So उसमें हमने उन लोग को कहा है, once result declare, आरओ का इसमें कोई रोल नहीं है. There is certain procedures that you have to be follow if you have any grievances. तो उसको हमने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि आप, I am the union advisor, as a union advisor and I am the chairman of grievances and redressal of the college. So आप हमको एक एप्लीकेशन लिखो by addressing, हमको एड्रेस करके अपना redress को हमको एप्लीकेशन लिखो. But they were not ready to accept that. Just they want only the RO. RO को चाहिए था, means वो RO को मारने के लिए चाहिए था, not to solve their problems. And this is due to the misinformation given by this counting agent and the polling agent. उसका वजह से उन लोग ने RO को physically चाहिए और RO को ही चाहिए. That was the demand. Okay. तो बाद में हमने उन लोग को बोला है, बार बार रिक्वेस्ट किया है, ये प्रोसीजर होता है, आप प्रोसीजर को फॉलो करो. अगर आपको इलेक्शन प्रोसेस में इफ़ यू फाइंड एनी एनोमलीज, यू हैव द प्रोसीजर, आपको फॉलो करो. वी आर रेडी टू हियर योर ग्रीवेंसेस, बट दे आर नॉट रेडी फॉर दैट. लेटर ऑन आफ्टर 12:30 डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने आके उन लोग को मॉब को थोड़ा डिस्पर्स किया. उसके बाद हम लोग सेटल किया और उसमें भी ये डिसीजन था कि हम लोग गाइडलाइंस को ही फॉलो करेगा. तो आप अपना ग्रीवेंसेस कल सुबह लाइए. तो उसने 20 मॉर्निंग को एट अराउंड 12 उसने एप्लीकेशन लाया. देयर सर हैज़ मेंशन ऑल द कंप्लेंट. उन्होंने 9 कंप्लेंट लाया. तो एज यू नो वी हैव ऑलरेडी grievances and redressal in our college, which constitute union advisor as the chairman or 1 senior faculty members. So उसमें बीपी सर पहले से है. एंड हम लोग ने EAC सर को, डॉक्टर दोंगेन सर को हम लोग एज ए मेंबर, उसको एज ए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसको बुलाया. उसके बाद 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रखा. उसके बाद जितना ये लोग का एलिगेशन से हम लोग हियरिंग किया, इंक्वायरी किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज जो कंप्लेनेंट है. तो उसमें हम पॉइंट वाइज सबको नहीं बोलेंगे, इट्स वेरी लेंदी. तो उसने जितना पॉइंट्स उसमें दिया है वो सबसे, अब उसका देयर वाज नो एनी प्रूफ, कुछ भी एविडेंस नहीं था, वो प्रूफ नहीं कर पाया. दिस वाज जस्ट स्पेकुलेशन. वो बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस उसने कहा कि बैलेट पेपर को टेम्पर किया, बैलेट पेपर मिसिंग था. उसके लिए हम लोग के पास वीडियोग्राफी था, फोटोग्राफी था. थ्रू वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी हम लोग ने दिखाया कि देयर इज़ नो एनी टेम्परमेंट in the ballot box and there is no anomalies, in the counting process. Every counting process was done in the presence of counting agent and they were very satisfied. And even after the declaration of result, I asked them to stay in the counting room till the declaration of result and till they put the signature on the counting report. They were satisfied and they put their signature. और लास्ट में वन प्रॉब्लम ये हो गया था कि मतलब उन लोग को सीसीटीवी वहाँ से काउंटिंग रूम नंबर 1 से रूम 2 में जो सीसीटीवी फुटेज बैलेट बॉक्स को बैलेट पेपर को काउंटिंग के लिए रूम 2 में पहुंचाने वाला, उसमें दूसरा आदमी वहाँ से पिकअप किया, इसमें ड्रॉप करने वाला दूसरा था. वेरेज उसमें
हम लोग का काउंटिंग का चेयरमैन था बीपी सर, उसने ही वहाँ से निकाल के इधर में ड्रॉप किया है। तो उसका सीसीटीवी फुटेज चाहिए था उन लोग को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ वो उन लोग का प्रेजेंस में हम लोग ने ऑफिस का सीसीटीवी को खोला है। तो उसमें बिकॉज ऑफ दिस डीवीआर का प्रॉब्लम का वजह से सिंस जून से सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन वो नहीं कर पाया, उन लोग को सीसीटीवी फुटेज को नहीं दिखा पाया, लेकिन दे वर सेटिस्फाइड, उन लोग को पता चल गया कि क्लियर हो गया कि उसमें सर ने वहाँ से लेके इसमें ड्रॉप किया है। सो इन एवरी कंप्लेन वो लोग जो है दे कुड नॉट सब्सटेंशिएट विद द एविडेंस, कुछ भी एविडेंस के साथ वो लोग नहीं आया है, इट्स जस्ट स्पेकुलेशन। तो उसमें हम लोग सब एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए विद द प्रेजेंस ऑफ EAC एंड ऑल द कमिटी ऑफ द रिड्रेसल कमिटी, हम लोग ने सब जो लोग का एनोमल जिसका पॉइंट्स उन लोग का कंप्लेंट था उसको एक एक पॉइंट में हम लोग डिस्कस किया है। डिस्कस करके हर पॉइंट को दे वर सेटिस्फाइड, उसमें कुछ भी एनोमलीज नहीं था। देयर वाज नो एनी लैप्सेस ऑन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, देयर वाज नो एनी लैप्सेस इन द प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस में लैप्सेस नहीं था। तो उसमें बाद में वो लोग डिसाइड कर दिया कि सब एक्सेप्ट हो गया, तो जितना उन लोग का ग्रेवेंसेस है सब रिड्रेस हो गया। देयर इज नो एनी कंप्लेंट, देयर इज नो लेफ्ट व्हिच इज नॉट रिड्रेस्ड, जितना कंप्लेंट था एंड दे कुड नॉट शो, दे कुड नॉट प्रूव इट, उसको प्रूव नहीं कर पाए, दैट्स ऑल। तो ऐसे सोशल मीडिया और ऐसे सुनने को आ रहा है कि जो DPGC काम के में हाल ही में जो इशू चल रहा है इलेक्शन का बाद ऐसे कुछ इशू देखने को आ रहा है, तो इसमें KKSU लोग इसको करवा रहा है, ऐसे देखने को भी आ रहा है और सुनने को भी आ रहा है, ये सच है ना गलत है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आलो न्यूज़ टुडे, जो आप टाइम निकाल के हम लोग को ये सवाल किया, और हम सोच ही रहा था इसको हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन KKSU का एपेक्स बॉडी का तरफ से देगा बोल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम्बा जो DPGC गामकी कॉलेज जो है, तो मैं भी मेरा ही होम टाउन का है। पर्सनली आई बिलोंग फ्रॉम ए काम्बा सर्कल। वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ KKSU, तो पब्लिक और व्यूअर्स जो भी कंसर्न्स मेंबर्स है DPGC कॉलेज को लेके, तो अभी सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में कहीं में मतलब KKSU का नाम को लेके कुछ लोग ट्रोल किया है। तो मैं उसका नॉलेज के लिए और जानकारी के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी जो काम्बा में जो इलेक्शन हुआ है उसमें एक वन गर्ल कॉन्टेस्टेंट है कार्पी लॉलेन, एंड इसका ओपोनेंट जो है वन सोगली बोगो। तो सोगली बोगो जो है पर्सनली ही इज बिलोंग फ्रॉम द KKSU कम्युनिटी। फिर भी हम पहले बोला है, आप लोग का जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कामकी कॉलेज में जो इलेक्शन होता है देयर इज़ ए प्रोसीड्यूर, देयर उसमें एक अलाइन सिस्टम है। जो अलाइन सिस्टम क्या होता है कि उसमें हम लोग जैसे कि KKSU हो गया, अपर सिवनसिरी हो गया, ऑल लिबो रामो एंड बोडी अल्बर्सु बोलते स्टूडेंट यूनियन, आदिसु एंड जिगो यीगो स्टूडेंट्स यूनियन एंड ऑल मैचुका स्टूडेंट्स यूनियन। तो ये एक 6 स्टार है, 6 अलाइंस है। जो इसका अलाइंस है एक रिप्रेजेंटेटिव बेचता है जिसका नाम है सोगली बोगो। देन रेस्ट जैसे कि आपका काम्बा हो गया, आलो हो गया, देन बासर हो गया, बासर एरिया स्टूडेंट बासु हो गया। ये लोग जो है एक कैंडिडेट वो लोग रिप्रेजेंटेटिव बेचता है। तो ऐसे हो के वो लोग विद इन कॉलेज का अंदर में ये इलेक्शन मतलब कॉन्टेस्ट होता है। तो इसमें KKSU का नाम को तय करके ट्रोल करने का किसी इंडिविजुअल को भी राइट नहीं है। तो मैं पब्लिक से भी और व्यूअर्स जो भी है, जो भी रिलेटेड से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप काइंडली KKSU का नाम को लेके इसमें DPGC का इंसिडेंट में आप ट्रैक मत कीजिए। एंड एज ए प्रेसिडेंट KKSU की तरफ से अभी जो DPGC में इंसिडेंट हुआ है, हम लोग भी इसको ये इंसिडेंट को हम लोग कंडेम करते हैं। एक स्टूडेंट्स हो के ये सब इंसिडेंट, ये सब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कॉलेज कंपाउंड का अंदर में बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। तो जो भी किया है हम लोग टीम KKSU अभी जो बेटा है, हम लोग स्ट्रांगली इसको हम लोग भी कंडेम करता है। इन फ्यूचर में भी ऐसा दोबारा नहीं होना है। तो आप लोग को क्या लगता है जो ये जो इंसिडेंट्स हुआ है, जो भी इसका स्टूडेंट लोग कर रहे हैं,
आप लोगों को क्या लगता है ये केकेसू लड़का लोग किया है ना सब मिलके किए हैं? देखिए इसमें ऐसा है, जब रिजल्ट 19 को जब बूथकास्ट हुआ, देन कंटिन्यूसली बूथकास्ट खत्म होकर वो लोग काउंटिंग शुरू किया। जब जिस दिन रिजल्ट शाम का अराउंड 4 to 5 का बीच में रिजल्ट आउट हुआ, उसमें जो है जो हारने वाला टीम सुनने में 10 बूथ से हारा है, तो वो लोग जो है उसमें प्रोटेस्ट किया था। तो वो लोग स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, वो लोग का कुछ पॉइंट लेके, ऑब्जेक्शन लेके, वो लोग का कुछ डिमांड था। तो इसमें बाहर में बहुत स्टूडेंट्स, बच्चा लड़की लड़का लोग उसमें स्ट्रांगली अपोज कर रहा था। एट द टाइम हमको भी मेरा वेस्टर्न डीएसपी जो फोन किया था और डीसी भी फोन किया था, तो उसमें ऐसे हो रहा है जिसमें नो केकेसू का स्टूडेंट लोग भी हो सकता है ना, तो उसमें कुछ भी इंसिडेंट नहीं होना है, आप लोग जिससे भी इंटरवेंट करके इसको सॉर्ट आउट कर दो। तो हम लोग भी उसको बात को सुन के मेरा जीएस हम लोग का टीम जो है वो ऑन द स्पॉट हम लोग रश किया, उसमें जाके विजिट करके हम लोग स्टूडेंट्स का डिमांड को भी देखा। इसका बाद देन हम लोग स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस को लेते हुए इसमें हम लोग का वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी से जुमरिक बागरा एंड लुकेंग गमलिंग को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। वो लोग टाइमली इसमें इंटरवेन किया था। तो हम लोग उसका टीम में ज्वाइन करके हम लोग का स्टाफ काउंसिल मेंबर्स जो होता है डीपीसी का एंड देन प्रिंसिपल को लेके हम लोग का एक बैठक हुआ था, सिटिंग हुआ था, जिसमें हम भी वो लोग को बताए हम ऐसे मेरा स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट करके सुना है ना, तो हमको पर्सनली डीसी एंड डीएसपी कॉल किया था तो ये इंसिडेंट को लेके। तो हम लोग भी अभी स्टूडेंट को बात किया है इसमें ऐसे प्रॉब्लम है बोल के, तो हम लोग उन लोग के साथ टेबलिंग करके जो भी मैंने मैटर को हम लोग थ्रोली डिस्कस किया था। तो डिस्कस करते समय में भी मतलब हम लोग इसका बाद बाहर जाके स्टूडेंट को कन्विंस किया है, वहाँ में जो 6 स्टार जो प्रोटेस्ट कर रहा था उन लोग को भी हम लोग बताया है ये ऐसे ऐसे सिस्टम को बता के आप लोग यहाँ में झगड़ाबाजी नहीं करना है, कुछ भी होने से भी लीगल वे से जाओ ना, आपका जो भी डिमांड होने से भी आप लोग उसको एक चेयरमैन होता है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल को आप लोग प्लेस करो, आप लोग का जो भी मतलब प्रॉब्लम को लेके। तो ऐसे होके हम लोग सबको शांति से बात को मिला के जितना भी वहाँ प्रोटेस्ट स्टूडेंट था देशू वेस्टर्न स्टूडेंट यूनियन के साथ हम लोग मिल के उसको सब अपना घर में शांति से हम लोग सबको भेज दिया था। देन सुबह का 9 बजे को अभी का जो प्रिंसिपल ने एक मीटिंग फिक्स किया था ये इशू में फिर डिस्कस करेगा बोल के। तो ऐसे हो कि हम लोग रात को स्टूडेंट को ऊपर डिस्कस कर दिया, रात को शांति भी हो गया कुछ प्रॉब्लम नहीं है 19 का शाम को। देन सुबह 20 मॉर्निंग का सुबह में 9 बजे से लेके हम लोग अगेन 4 बजे तक मीटिंग किया है। उसमें एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, हम लोग जो बॉयकॉट प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स है उसका हाथ बात करके तो उन लोग को हम लोग कन्विंस भी कर लिया। तो उन लोग का एक डिमांड था कि अभी हम लोग जो काउंटिंग प्रोसेस को एंटर काउंटिंग प्रोसेस को ये मतलब एक अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस में हुआ है, तो कुछ उन लोग का स्टूडेंट का कुछ इशू को लेकर डाउट था। तो स्टूडेंट लोग बोला है कि एटलीस्ट हम लोग का सीसीटीवी फुटेज को हम लोग को एक बार दिखा दो, तो ऐसे होने से हम लोग सेटिस्फैक्टरी हो जाएगा ऐसे बोल के। तो देन हम लोग किसी वो प्रॉब्लम को लेके प्रिंसिपल को लेके वहाँ का जो फैकल्टीज मेंबर है उसको हम लोग जो पहले बोला है रेड्रेसल चेयरमैन ग्रुप को इसको प्लेस करके बताया। तो फिर सीसीटीवी फुटेज का पासवर्ड उन लोग का पास नहीं था, तो शायद जो पहले वो सेट किया है वो चला गया बोला है। तो ऐसे हो के पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए आलो से एक एक्सपर्ट हायर किया था। तो वहाँ में जब ब्रेक किया है तो सीसी फुटेज जो है उसमें चलता है लेकिन एंटायर एपिसोड को रिकॉर्डिंग नहीं किया है। तो ऐसे हो के सीसी फुटेज भी ब्लैंक ही रह गया। तो फिर भी ऐसे भी होने से भी हम लोग स्टूडेंट को भी समझाया है, जो भी हो हम लोग विश्वास करते हैं यहाँ का जो भी फैकल्टीज मेंबर है, जो भी कमिटी है इलेक्शन प्रोसेस का, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग विदाउट बायसनेस फ्री एंड फेयर में कंडक्ट किया है। तो आप लोग उसको भी ज़्यादा मत बोलिए बोल के भी सब कुछ उसको स्टूडेंट को भी कन्विंस करके हम लोग 20 का शाम को भी मतलब वो स्टूडेंट को पूरा कन्विंस करके अपना घर बेच के हम लोग भी वहाँ से आलो निकल गया अपना रास्ता से। तो अभी अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट जो हुआ है 20 का रात को हुआ है, तो हम लोग तो इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है स्टूडेंट लोग क्या कोई इशू को लेके लोग झगड़ा क्या है। हमको लगता है कि ये अभी का जो सब्जेक्ट है जो अभी विनिंग लूजिंग को पार्ट को लेके ये इशू में लोग का झगड़ा नहीं है। हमको सुनने में आया कि ये झगड़ा जो है एक पर्सनली मतलब थ्रू स्टेटस को लेके जो मतलब अभी जो जीतने वाला टीम जो है अपना
कुछ विनिंग को लेकर सेलिब्रेट करता है, कुछ हारने लगा बारे में कुछ ड्रैग करके नाम करके लिखता है, तो उसको एक अपना ही फ्रेंड लोग है वो लोग, तो ऐसे हो के उसका रिप्लाई सप्लाई हो के वो लोग थ्रू एक चीज़ ये है कि जो भी वो हमें स्टूडेंट पढ़ रहा है सब तो बच्चा है, इमेच्योर है, तो वो लोग का पास में गर्मा गर्मी में क्या क्या हो जाता है, कब क्या होगा हम लोग भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ऐसे हो के ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, हम लोग भी दुख लगा है। तो इसमें मेरा अभी हम कुछ स्टूडेंट भी इसमें अरेस्ट हुआ है, अभी कस्टडी में है, 13 स्टूडेंट अरेस्ट हुआ है, उसमें भी मेरा कुछ लोग के स्टूडेंट भी है। तो हम लोग भी पर्सनली उन लोग को जाके पूछा है, तो बेचारा सब लोग इनोसेंट है, जो माने कोई लोग तो अभी अंडर एज है, क्लास 12 में हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अपना रेंट का रूम में बैठ रहा था, उधर से पुलिस लोग आके उसको उतार के लेके अभी 2 दिन हो गया, अभी पुलिस स्टेशन में है। अभी कल सैटरडे संडे आएगा, मंडे तो ही उन लोग का कुछ हो सकता है। तो ऐसे अननेसेसरीली हार्मफुल भी हो रहा है, तो क्या करेगा, सब लॉ, एवरीवन इज़ द लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स कि लॉ में जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि कल और या मंडे को, तो अभी हम अपना पेरेंट्स लोग, उसका इंडिविजुअल पेरेंट्स लोग तो अभी बेल के लिए या जो भी हो लोग का, तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चलते रहेगा ना। तो हम तो अभी का जो पुलिस एनफोर्सिंग एजेंसी को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग भी अच्छा से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। यहाँ में इनोसेंट स्टूडेंट्स को लेके, यहाँ में मतलब स्टूडेंट का करियर का सवाल है ना, वो लोग का फ्यूचर का सवाल है। जो भी अभी DPC में जो लड़का लड़की लोग जो पढ़ रहे हैं, वो हम लोग का ही सोसाइटी का और हम लोग का ही स्टेट का एसेट है, फ्यूचर का ना, फ्यूचर है। तो उसको हम लोग उसका फ्यूचर को लेके हम लोग सोचना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपील करते हैं कि अभी जो भी पब्लिक या जो भी ये चैनल को देख रहा है, जो भी कंसर्न मेंबर है हम लोग का DPC कॉलेज का, मतलब ये एक सबका प्रॉब्लम है, ये सबके लिए दुख का बात है ना। तो इसको हम स्पेशली पब्लिक जो भी वेल विशर है सबको रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग सब आगे आना है, तो ये इसका मतलब परमानेंट एक सोल्यूशन के लिए, ताकि हम लोग का जो भी वहाँ में जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा है वो लोग, ताकि अच्छा एक एटमॉस्फेयर हो। अभी देखो एक कैंडिडेट 10 बूथ से लीड किया है, बाकी हारने वाला टीम भी तो एक पोर्शन का लीडर है, एक ऑलमोस्ट 45-46% का लीडर है। तो दोनों का एक सब लोग फ्रेंडली एक नेचर, एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर जो है स्कूल इंस्टीट्यूट में जो होना है वो होके बैठना है। तो हम भी वही रिक्वेस्ट करते हैं कि सब कुछ को मतलब स्टूडेंट से कुछ स्टूडेंट को गलती हुआ होगा, फिर भी उस गलती को करेक्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ के इंस्टीट्यूट का जो एटमॉस्फेरिक एकेडमिक एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग आगे बढ़कर रखना है। तो हम अपील करते हैं।